لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اکثر میں یہ بات بتایا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب ایک سفر پہ روانہ تھے۔ راستے میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تھوڑی ریسٹ کرنے کے لیے، سکونت اختیار کرنے کے لیے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا۔ تو تمام اصحاب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو آپ کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی تو موجود ہے لیکن سالن موجود نہیں کہ جس کے ساتھ ہم یہ روٹی کھا سکیں۔ تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان کے پاس ایک شہد کی مکھی آ کے گنگنانے لگتی ہے۔ تو تمام اصحاب پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحاب، یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ پاس ہی ایک جنگل ہے، ادھر میں نے شہد تیار کر کے رکھا ہوا ہے، آپ میرے ساتھ کسی کو بھیجیں تاکہ وہ شہد لے کے آئے اور آپ شہد کے ساتھ روٹی کھا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس کے ساتھ بھیجا۔ وہ جیسے جیسے مکھی چلتی رہی آپ اس کے پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ شہد لے کے جب واپس آئے تو پھر وہ شہد کی مکھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کچھ گنگنانے لگی۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے تو یہ شہد کا کہہ رہی تھی، اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحاب، میں نے اسے ایک سوال پوچھا تھا کہ اے مکھی، جب تم پھولوں کا رس چوستی ہو، کچھ پھولوں کا رس کڑوا ہوتا ہے اور کچھ کا میٹھا ہوتا ہے، لیکن جب یہ شہد نکلتا ہے یہ تو سارے کا سارا میٹھا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ مکھی مجھے جواب دے رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہم وہ پھولوں کے رس کو چوستی ہیں تو چھتے تک جاتے جاتے آپ کی ذات پہ درود پڑتی ہیں، اللہ کڑوے کو بھی میٹھا فرما دیتا ہے۔ تو میرے یا رسول اللہ، تو غلاموں حضور کے کہ اگر ایک شہد کی مکھی وہ مکھی ہو کے حضور کی ذات پہ درود پڑے تو اللہ اس کے جسم سے شہد نکالتا ہے، تو ہم تو حضور کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، جب ہم حضور کی ذات پہ درود پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مولانا و مولا الثقلین۔ بعد از حمد و ثنا نہایت عزت و تکریم کے لائق اس مسجد کے امام حافظ محمد وقار صاحب اور ادھر موجود تمام سامعین و حاضرین، میں نے آپ احباب کے سامنے جو آیت مقدسہ پڑھنے کی عزت پائی
इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ये इरादा रखता है कि नबी के घर वालों को, अहले बैत को, उनसे हर किस्म की नजासत, गंदगी, हर नापाकी दूर करके वह युत्तहिरकुम, उनको पाक फरमा दे। और सिर्फ पाक ही नहीं, तत्हीरा, खूब पाक फरमा दे, ताकि किसी किस्म की कोई गंदगी, कोई नजासत उनसे कोई गुमान भी ना कर सके कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना पाक फरमा दिया है। तो सामीन अज़ीज़ वक़ार, जब ये आयत मुकद्दसा नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे। आपने चादर ओढ़ी हुई थी, आप बैठे हुए थे और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आए। आपने उनको भी चादर में ले लिया। सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, आप भी जलवा अफरोज हुई तो आपको भी चादर में ले लिया। और फिर हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन आप भी आए और आपने उनको चादर में ले लिया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलल बैत, कि ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्म की नजासत, हर किस्म की गंदगी को दूर फरमा दिया है। सामीन जी वकार, 13 रजबुल मुरज्जब हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम विलादत है। आप काबतुल्लाह में पैदा हुए। ये भी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का खासा है। एक बंदा सिर्फ काबतुल्लाह में जिसकी विलादत हुई, उसका नाम है अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम। जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो आप आंखें नहीं खोल रहे थे, तो सारे लोग परेशान हुए कि पता नहीं ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे। आपकी माँ, आप भी परेशान। तो तमाम लोग बारी बारी सब ने आके देखा, लेकिन आपने आंख नहीं खोली। लेकिन जब हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात आप तशरीफ फरमा हुए, आपने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को जब गोद में लिया तो आपने अपनी आंख मुबारक खोली और सबसे पहले रूहे वद्दुहा की ज़ियारत की। सामीन जी वकार, अली वो है जिसकी विलादत काबे में हुई और जिसकी शहादत मस्जिद में हुई। सामीन जी वकार, इमाम मुस्तदरक, आप अपनी किताब मुस्तदरक लिल हाकिम में लिखते हैं कि सबसे पहले जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पे ईमान लाया वो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जात है। आपकी उम्र मुबारक तब 13 साल थी। आप सबसे पहले मोमिन हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर ईमान लाया और आप सबसे पहले मोमिन कहलाते हैं। सामीन जी वकार, आइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और अहादीस सुनते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि ए अली, तुझसे सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत कर सकता है और तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जो मुनाफिक होगा। सामीन जी वकार, पता चला कि अली की मोहब्बत सिर्फ ईमान वालों को नसीब होती है। आज कुछ लोग कहते हैं कि अली अली करने से बंदा शिया हो जाता है। अली शियों की जागीर नहीं, अली सुन्नियों का इमाम है। हम अली को डंके की चोट पे मानते हैं। अली को मानना ही ऐन ईमानियत है, अली को मानना ही मोमनियत है। जब तक अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम का, उनकी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं होगी, हमारा ईमान हरगिज़ मुकम्मल और कामिल नहीं हो सकता। सामीन जी वकार, एक और हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। सामीन जी वकार, आप अभी मस्जिद में तशरीफ फरमा हुए। जब आप मस्जिद के अंदर आए तो दरवाजे से हो के अंदर आए हैं। जब इधर से बाहर जाएंगे फिर भी दरवाजे से गुजर के बाहर जाएंगे। तो सामीन, ये पता लग गया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इल्म की खैरात लेने के लिए आना है
تو 2 दफा पहले अली के पास जाना पड़ेगा। अगर उधर से गुजर के आओगे तो अल्लाह तुम्हें इल्म की खैरात अता फरमा देगा। और जो लोग आज कहते हैं कि हम मुफक्कर बन गए, मुहद्दिस बन गए, हमसे बड़ा इल्म वाला कोई नहीं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि अपने दिल के अंदर अली की मोहब्बत का चिराग रोशन होना ही इल्म वाला होना है। और जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ है उसके दिल में ना कोई इल्म है, वो आलिम है ही नहीं। जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ है वो तो जाहिल है, वो अपने आप को ऐसे ही आलिम समझता फिरता है। सामीन ज़ी वक़ार, एक और हदीस मुबारका ये भी तिरमिज़ी में मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो सामीन ज़ी वक़ार, आज हम अगर कहने लग जाएं कि मौला अली, तो कुछ लोग कहते हैं जी नहीं जी ऐसे मौला अली नहीं कहना चाहिए, तो ये है वो, ये हुजूर की सुन्नत है। तमाम असहाब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को इसके बाद अपना मौला समझते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप भी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को इसके बाद अपना मौला कह के पुकारते थे। ये सहाबा की भी सुन्नत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। सामीन ज़ी वक़ार, जब जंगे खैबर हुई, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, हत्ता कि 39 दिन गुजर गए, लेकिन जंग फतह नहीं हो रही थी। तो सामीन ज़ी वक़ार, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया 39वें दिन कि कल मैं झंडा ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा कि जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता है। तो तमाम असहाब फरमाते हैं कि हम रात को हमें नींद नहीं आई, हम सोचते रहे कि वो कौन खुश नसीब होगा कि जिसको कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झंडा देंगे और अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। तो तमाम असहाब रात को यही दुआएं करते रहे कि काश कि कल वो मैं खुश नसीब हूँ। लेकिन जब 40वां दिन सुबह सूरज तुलू हुआ, तमाम असहाब का मजमा लगा, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को वो झंडा थमाया और फरमाया कि अली वो है जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता है। तो क्यों ना हम भी अली से मोहब्बत करें। नाराए हैदरी। सामीन ज़ी वक़ार, एक और हदीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको नकल किया है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद नूर है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली से इरशाद फरमाया कि ए अली, तुझे मुझसे वही निस्बत हासिल है जो मूसा को हारून से हासिल थी, लेकिन एक चीज है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, इसीलिए तू नबी नहीं हो सकता। सामीन ज़ी वक़ार, इस बात से ये पता चला कि अगर नबी अली नहीं हो सकता तो ये कादियान का गंदा कीड़ा कहां से नबी हो सकता है जो आके नबूवत के दावे करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु मौला अली का इतना बड़ा मकाम, और फिर भी हुज़ूर ने फरमाया कि नबूवत मेरे पे खत्म है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो आज कोई ये कहे कि नहीं जी हम नबी हैं तो ये है वो है, सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, वो कादियान का गंदा कीड़ा जो अपने आप को नबी मानता था, उसका हशर क्या हुआ कि जब उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मौत दी तो वो वॉशरूम में इस गलीज तरीन हालत में था कि उसको बयान करना ही मुनासिब नहीं मस्जिद में। तो सामीन ज़ी वक़ार, ये हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का मकाम है। एक और हदीस, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, कि अली तू मेरा इस दुनिया में भी भाई है और कल क़यामत के दिन भी तू मेरा भाई होगा। सामीन ज़ी वक़ार, आज मैं एक किसी, उसको मैं आलिम तो नहीं कहूंगा, जाहिल कहूंगा, वो कह रहा था कि जी नहीं हमें नहीं कहना चाहिए हजरत अली को हजरत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भाई, वो सिर्फ हुजूर ही कह सकते हैं। यार हुजूर ने हमें फरमाया है, हदीस मुबारक है कि या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, कि अली दुनिया में भी मेरा भाई है, कल क़यामत में भी मेरा भाई होगा। तो तुम्हें क्या मर्चियां लगती हैं। यही बात है कि जब अली अली ज्यादा करने लग जाओ तो फिर शिया होने का फतवा,
राफजी होने के फतवे। इमाम शाफी फरमाते थे ना, जब उन्होंने ज्यादा अली अली करना शुरू की ना तो लोगों ने आप पे राफजियत के फतवे लगाना शुरू कर दिए। तो इमाम शाफी फरमाते हैं अगर अली अली करना राफजियत है तो ये शाफी सबसे बड़ा राफजी है। हैदर 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 हैदर। एक और हदीस मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अली से बुग़्ज़ रखा, जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ है, उसने मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा। अल्लाह अकबर। जिसके दिल में कीना बराबर भी अली का बुग़्ज़ हुआ तो हुजूर फरमाते हैं कि उसने मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। ये बात आप सोचें कि अल्लाह से बुग़्ज़ रखना, जिसके दिल में कीना बराबर भी मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का बुग़्ज़ है, उसके दिल में खुदा का बुग़्ज़ है, उसके दिल में रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ है। तो सामईन अज़ीज़ वक़ार, अपने दिल को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से और अहले बैत अतहार की मोहब्बत से सरशार करें, और सहाबा की मोहब्बत भी हमारे ईमान का अहम हिस्सा है। हम वो हैं जो हुजूर के सहाबा का भी एहतराम करते हैं और हुजूर के अहले बैत अतहार का भी एहतराम करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और हदीस में, आपको तबरानी की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अली माल कुरान वल कुरान माल अली, कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है, और हत्ता के ये दोनों ऐसे ही मेरे साथ कल बरोज़े हशर हौज़े कौसर पे आके मुझे मिलेंगे। सामईन अज़ीज़ वक़ार, इससे हमें मालूम हुआ कि अगर कुरान को समझना है तो अली की मोहब्बत का दिल में होना जरूरी है। अगर अली की मोहब्बत दिल में नहीं तो कुरान को खोलने का कोई फायदा नहीं। दिल में कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल में नहीं डालेगा। अली की मोहब्बत कुरान को समझने के लिए अशद जरूरी है। अली की मोहब्बत कुरान की मोहब्बत है और कुरान की मोहब्बत अली की मोहब्बत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और इरशाद आपके सामने पेश करूं, कंजुल उम्माल की हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली मेरे बाद खैरुल बरिया है। इसका ये माना है कि तुम सबसे बेहतर मेरे बाद हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ाते बारका है। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ये शान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद सबसे बेहतरीन आदमी मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम है। एक और हदीस कंजुल माल, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली हिदायत का दरवाजा है, जो इससे दाखिल हो गया वो फलाह पा गया, वो ईमान वाला हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद सुने कि अली हिदायत का दरवाजा है, यानी कि हिदायत अली के कदमों में आने से मिलती है। कोई बंदा कहे कि मैं सिद्दीक़ अकबर को भी मानता हूँ, हजरत उमर फारूक को भी मानता हूँ, हजरत उस्मान गनी को भी मानता हूँ, लेकिन दिल में मौला अली का बुग़्ज़ हो तो हिदायत उसके पास नहीं आ सकती। अली की मोहब्बत ही हिदायत है, ये दरवाजा है हिदायत का। जब तक तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत नहीं होगी तुम्हारे दिल में हिदायत आ ही नहीं सकती। एक और हदीस मुबारका मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने अली की इताअत की गोया उसने मेरी इताअत की, यानी कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु